जालंधर में जहां एक तरफ खूब बारिश हुई और तेज हवा चली, इन सबसे आम लोगों को तो राहत मिली, पर कई जगहों पर इसका भारी नुकसान भी हुआ। जालंधर के जंदू सिंगा गांव के पास एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी, जिससे लाखों का नुकसान हो गया। आग इतनी भयानक थी कि करीब 80 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਐਲ ਫੈਕਟਰੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ 7:15 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਆ ਗਏ। 2 ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਸ਼ੀਤਲ ਫੈਕਟਰੀ ਆਏ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਮਪੁਰ ਤੋਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 90 ਗੱਡੀਆਂ ਫਾਇਰ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਥਿਨਰ ਦੇ ਡਰਮ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਏ, ਉਹ ਫਟ ਵੀ ਗਏ। ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਫਾਇਰ ਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ? 7:15 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅੱਗ? ਕੋਈ ਲੱਗ ਹੀ ਗਏ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ? ਹਾਂ, ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ? ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ADFO ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਲਗਭਗ? ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਅਦ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੁਲਕਣ ਡਈ, ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਗੱਡੀ ਆਜ਼ਮਪੁਰ ਤੋਂ, ਇੱਕ 에ਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, 2 ਸ਼ੀਤਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਧਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਰੀਬ 7 ਵਜੇ, ਤੇ 7:20 ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੰਭਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ 에ਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ 8-10 ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਦਮਕਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾ ਲਿਆ। ਸਟਾਕ ਕੀ ਸੀਗਾ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ? ਇਹ ਥਿਨਰ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਥਿਨਰ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅਮਾਉਂਟ ਕਰੀਬ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ 12 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਕਟਰੀ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਸਰਨ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰਸ ਹੀ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ? ਸੈਂਪਲਾਸ ਪੇਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਚਿੰਗਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਨੇਰੀ ਨੂਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਈ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਿਸਟਮ। ਡਰਮ ਕਿਸੜ ਵੀ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਂਸ? ਡਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਇਰਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਕੌਣ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ? ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ। 8 ਤੋਂ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਮੌਕੇ ਤੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਪੈਰਲਰ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਵਿੱਚੇ ਫੌਗ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ। उड़ता पंजाब देश भर में बहस का मुद्दा बन गई है। इस बीच इस फिल्म का अमृतसर में जमकर विरोध हुआ और इस फिल्म के पोस्टर भी फाड़े गए। करीना कपूर, शाहिद कपूर और आलिया भट्ट जैसे कई बड़े सिनेमा के सितारों से अभिनीत फिल्म उड़ता पंजाब आज देश में एक बड़ा राजनीति का विषय बन गई है। दरअसल इस फिल्म में पंजाब के नशे के कारोबार को दिखाया गया है, जिसमें कई राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकती नजर आ रही है। साथ ही सत्ता सरकार इस फिल्म को गलत बता रही है। इस बीच अब फिल्म का आज अमृतसर में जमकर विरोध हुआ। इस मौके पर समाज सेवी संस्थान ने भी इस फिल्म के पोस्टर फाड़े और इसको रिलीज न होने की बात कही। इस मौके पर उन्होंने अमृतसर की सड़कों पर प्रदर्शन भी किया। वहीं उन्होंने फिल्म की टीम के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही अपील की कि पंजाब को नशे के लिए बदनाम न किया जाए। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੋਸਟਰ
ਪੋਸਟਰ ਸਾਡੇ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਮੂਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਔਰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਗੱਭਰੂ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਲਵਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਖਾੜਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਨਾਲ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਜਲਾਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਵੀ ਗਲਤ ਦਿਖਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਏ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਫਗਾਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕੀ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਰਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਨਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। गोहाना पानीपत रोड स्थित दरियापुर बस्ती वार्ड नंबर 10 में देर रात एक व्यक्ति की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए शहर के सामान्य अस्पताल में भेज दिया है। रात को मैं पेट्रोलिंग कर रहा था तो देर रात में 12:30 बजे के आसपास मेरे को सूचना मिली। विजेंद्र समाफेश्वर सिंह है, विजेंद्र समाफेश्वर सिंह जो अभी MC बना है 10 नंबर वार्ड से। ये जो एरिया है ये उससे मेरे को सूचना मिली कि प्लॉट के अंदर किसी आदमी की चोट मारकर हत्या कर दी गई है। तो हम यहाँ मौके पे पहुँचे तो देखा इधर लड़की की डेड बॉडी पड़ी थी, सिर से, मुंह से और हाथों से खून निकल रहा था। और कुलदीप नाम का व्यक्ति है, इसका अभी कहाँ का रहने वाला है ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है। डेड बॉडी को हमने सिविल हॉस्पिटल दाखिल करा दिया था, दर्ज कर दिया गया है। सर इस पे चोटों के निशान कैसे, को गोली है या किसी तेज धार हथियार से? नहीं, तेज धार हथियार से चोट लगी है। उसके सिर पे दो सिर पे लगी हुई हैं और मुँह पे है, चेहरे पे है और लेफ्ट साइड है। कोई शराब वगैरह का? हाँ, शराब, मौके से शराब की बोतल और सोडा वगैरह, दही वगैरह उसमें जहर मिलाने की कोशिश है, वो चीज़ अभी क्लियर नहीं हो पाई है। वो पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगी। देखिए इसमें पार्टी का तो कोई सीधा लेना देना नहीं होता। कोई क्या बात हुई है उसका जानकारी भी हमें नहीं है किसी किस्म से। ये तो सीधा अगर इस किस्म की बात जैसे आपके माध्यम से मुझे पता लग रहा है तो उसकी जैसे भी होगी जांच होगी और जांच में जैसे कुछ पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। मैं समझता हूँ कि इस पर स्वच्छ भारत और पानी बचाओ के संदेश को घर घर पहुंचाने के लिए मोगा में एक रैली का आयोजन किया गया। यह रैली मोगा नगर निगम से शुरू होकर मोगा के अलग अलग स्थानों से होती हुई वापस नगर निगम के दफ्तर पहुंची। इस रैली को मोगा के डिप्टी कमिश्नर कुलदीप सिंह वैद और नगर निगम के चेयरमैन अक्षित जैन ने हरी झंडी देकर रवाना किया। इस मौके पर रैली में मोगा नगर निगम के कई अधिकारियों और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। इस रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपने शहर और आसपास की जगह को साफ सुथरा रखना और पानी को बचाना है। ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਫਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ
किसान वीर ने ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਇਸ ਰੈਲੀ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ, ਬੱਚੇ, ਆਫੀਸਰਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸਖਤੀ ਦੇ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਦਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਉ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਈਵਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਚ ਕਰਨ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਨਾ ਚਲਾਉਣ। गोहाना के महरा गांव बलराज के सुसाइड मामले ने नया मोड़ ले लिया है। मृतक के सुसाइड नोट में 3 बार पैसे लेने व मारपीट को लेकर दादा बलजीत गढ़वाला खाप प्रधान व बीजेपी नेता का नाम लिखा गया था, लेकिन पुलिस ने एफआईआर में 2 महिला कर्मचारियों के नाम दर्ज किए हैं। मीडिया में दिए गए पुलिस बाइट के दौरान 4 के खिलाफ नाम दर्ज की बात कही गई थी। अब देखना यह होगा कि पुलिस ने दबाव के चलते 2 बीजेपी नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया है या फिर दादा बलजीत मलिक का रसूख इतना पड़ा था कि पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। गढ़वाला खाप के प्रधान व संरक्षक ने दादा बलजीत मलिक का बहिष्कार किया है और पुलिस पर मिली भगत होने का भी आरोप लगाया है। गढ़वाला खाप ने बलराज सोसाइटी मामले में एसआईटी से जांच की मांग की। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वो भाजपा सरकार के संरक्षण में रहकर के जो लोगों के साथ इस तरह की ठगी करता है और लोगों को मरने पर मौत के लिए विवश करता है, उनके पैसे भी ऐंठ लेता है नौकरियों नाम पर और न उन्हें नौकरी मिलती है और उनके पैसों के लिए भी उन्हें मना कर देता है और लोग विवश होकर के आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को सरकार ने संरक्षण नहीं देना चाहिए, उसे निकाल देना चाहिए। एसआईटी से उसकी जांच होनी चाहिए। आज ये गठवाड़ा खाप के जनतांत्रिक संगठन की मीटिंग है जिसका 3 वर्ष पूर्व गठन किया गया था। बलजीत सिंह के काले कारण, इसी तरह काले कारणों के खिलाफ उसको हटाया गया था, उसका बहिष्कार किया गया था। लेकिन ये अब भी अपने आप को खाप का प्रधान दर्शाता है और इसको दर्शाते हुए बीजेपी की टिकट ले आया था। ये यहाँ की पुलिस इससे मिली हुई है क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता है। सुसाइड नोट में उस लड़के ने साफ तौर पे लिखा है, 3 बार उस सुसाइड नोट में मेंशन किया है कि 3 लाख रुपए इसने इसको दे रखे थे नौकरी के लिए और वो नहीं मिले और इसकी मार पिटाई भी करवाई गई। तो ये इसके सुसाइड में मेन कल्प्रिट बलजीत सिंह मलिक है। हम ये मांग करते हैं कि यहाँ की, क्योंकि ये पुलिस की दलाली करता रहा है, तो स्थानीय पुलिस तो यहाँ से इसे मिली हुई है। एसआईटी बनाई जाए बाहर के पुलिस अधिकारियों की और जो है ना इसमें ऐसे अधिकारी हों जो पहले भी कभी को ना रहे हों और इसको ये मेन कल्प्रिट बलजीत सिंह है। हम कहते हैं इसकी पूरी इंक्वायरी हो ताकि ये जो सत्ता के दलाल है, सत्ता की दलाली करते हुए लोगों से, भोले भाई लोगों से नौकरियों के नाम पे और जो है तबादलों के नाम पे या सरकारी कामों के नाम पे पैसे ऐंठते रहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि इसकी एसआईटी बनाई जानी चाहिए, पूरा जो है ना इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम है ना न्यायालय में जाएंगे और उसकी सीबीआई इंक्वायरी करेंगे। अगर वाकई बीजेपी चाहती है कि निचले, मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऊपरले स्तर पर भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, निचले स्तर पर भ्रष्टाचार को खत्म करना है, ये निचले स्तर का भ्रष्टाचार अधिकारी इस तरह के सत्ता के दलालों के सारे करते हैं। अगर सही में बीजेपी चाहती है कि निचले स्तर का भ्रष्टाचार हो तो ये एक सबूत आया हुआ है, ऐसे खिलाफ कार्रवाई करो और इसकी पूरी इंक्वायरी करो ताकि और लोगों से भी जिसने पैसे ले रखे हैं और बहुत करोड़ों रुपए इसने लोगों से ठग रखे हैं वो सब के सब सामने है और इस तरह के लोगों पर अंकुश लगाया जा सके। जिस तरह से अपने आप को गठवाड़ा खाप के प्रधान बताया जा रहा है, हाँ। ये क्या मामला है? क्या वो प्रधान है या पहले हटा दिए गए थे? देखो ऐसा है, 150 साल से इसके परिवार में वंशानुगत प्रधानी थी, लेकिन ये अपना मतलब इसके पिताजी की मौत के बाद 13वीं वाले दिन इसको पगड़ी बंधी, बड़ा लड़का होने नाते उसके आधार पर ये अपने आप को प्रधान करने लग गया। लेकिन इसको 3 साल पहले छिछरा में इकट्ठा होकर इसको हटाया भी गया और इसका बहिष्कार भी किया गया और कुलदीप मलिक को है ना
प्रधान बनाया गया जो साथ में बैठे हैं, और मुझे संरक्षक बनाया गया। लेकिन ये फिर भी अपने आप को प्रधान दर्शाता है, और प्रधान दर्शाते ही ये बीजेपी की टिकट लेके आया था। लेकिन इस काले कारनामों के कारण इसका जनाधार इतना कम है कि बड़ौदा हल्के में 1,65,000 में से 18 गांव गठवाड़ा खाप के थे और 55,000 वोट थी उनकी। लेकिन ये गठवाड़े गांव में इसको सिर्फ 3,000 वोट मिले, और सारे हरियाणा में 90 के 90 हल्कों में बीजेपी का सबसे कम वोट इसके आए, क्योंकि इसकी रेपुटेशन थी खराब थी, जबकि इसके खाप के 1/3 गाँव थे। तो ये कहाँ से ये अपने आप को प्रधान तो कहता है, जब ये 5% वोट भी नहीं ले सकता अपने खाप के लोगों के, तो ये सारे खाप का मालिक कैसे है? इसके वो उस टाइम हमने वो बहुत सारे लोगों के आरोप थे कि हमसे पैसे ले रखे, तभी तो इसको हटाया था। वो इश्तेहार निकाला था इसका, इसके खिलाफ कि भाई ये आरोप है, तभी तो इसको हटाया था लोगों ने। हाँ जी, अपने आप को गठवाड़ा खाप का प्रधान बताते हुए ये गलत काम किया है, सत्ताई दलाली करते हुए लोगों से पैसे हटने का। इसने सारी खाप व्यवस्था, अकेले गठवाड़ा खाप नहीं, सारी खाप व्यवस्था को, खाप पंचायतों को बदनाम करने का कार्य किया है। तो हम गठवाड़ा खाप के जल्दी ही गठवाड़ा खाप के चबूतरे छिछड़ा में सर्व खाप पंचायत बुलाएंगे इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। संभल के गांव गड़ा में दिल दहला देने वाली घटना प्रकाश में आई है, जहां सरकार बेटी बचाओ अभियान चला रही है, वहीं एक मां ने ममता का गला घोट दिया। जहां महिला को मां का दर्जा सबसे ऊंचा दिया जाता है, उसी मां ने 4 माह की बेटी को जमीन पर पटक कर मार डाला। कहा जा रहा है कि पति ने अपनी पत्नी को मायके जाने से मना किया था, इसलिए इस मां ने ऐसी हरकत कर डाली। उनसे ये कहा कि अब नहीं जाएगी, अब हमारे पास टाइम नहीं। उन्होंने कहा कि हम अभी लिवा कर जाएंगे। हमने कही नहीं लिवा जाओगे। तो लड़की ने कहा, उनकी ने, हमारी पितबू ने, कि मैं जाऊंगी, मैं किसी कीमत से यहाँ नहीं रह पाऊंगी, मुझ पर इतना काम नहीं होगा। तो उन्होंने काफी देर समय हमने व्यतीत किया। वो 2-3 बार लेकर कर लगी थी। हम हाथों से पकड़ के और खींच के अपने घर को फिर लाए थे। इतने पे वो ना मानी थी। उसके माँ, वो पिता और उसका भाई मोटरसाइकिल पर बैठा के और उसे तैयार हुए। उसके पास लड़की थी, तो उसने। अच्छा, लड़की कितने दिन की थी? 4 महीने। 4 महीने की बच्ची थी। क्या घटना घटी थी बच्ची के साथ? बच्ची के साथ ये घटना घटी थी क्या, उन्होंने जब हमने की, जब तू जा रही है तो अपने बच्चों को अपना साथ ले जा। तो हमने जब उसे दिया तो उसने गोद में से लेकर और जमीन में मार दी। फिर क्या हुआ बच्ची के साथ? बच्ची का साथ ये हुआ कि बच्ची खत्म हो गई। धनाजी थाने के अंतर्गत जो मामला प्रकाश में है, क्या है पूरा मामला? देखिए, थाना धनारी में ग्राम गढ़िया है। वहाँ एक महिला है, उनका नाम सुनीता है। पति पत्नी का विवाद हुआ। आवेश और गुस्से में आकर के सुनीता ने अपनी पुत्री ज्योति को पटक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में सूचना मिलने पर तत्काल स्थानीय थाना पर 304 IPC गैर इरादतन हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मेरे द्वारा संबंधित थानाध्यक्ष और क्षेत्राधिकारी को निर्देशित किया गया है तत्काल गिरफ्तारी करके आगे विधिक कार्रवाई पूर्ण करें। पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित बेला विस्टा होटल के टॉप फ्लोर से एक IFS ऑफिसर की गिरकर मौत हो गई। ये ऑफिसर होटल की 6वीं मंजिल पर मौजूद था और रात को अचानक नीचे जमीन पर आ गिरा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पंचकुला पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामला संदिग्ध होने के चलते पंचकुला पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक IFS ऑफिसर पिछले कुछ समय से परेशान था, लेकिन उसकी पत्नी ने इस बात को नकारते हुए कहा कि उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। ऑफिसर की जो डेथ हुई है गिरने से, उसका क्या मामला है?
IFS ऑफिसर हैं मिस्टर अजय गार्डन थे। उनकी बेला विस्टा की 6th फ्लोर से गिरने से, छत से गिरने से उनकी मौत हुई, वाक़ई हुई है। उनके जो है कार्रवाई हमने कर दी है और पोस्टमार्टम उनका हो चुका है और डेड बॉडी उनके जो पेरेंट्स हैं उनके बाद जो है उनको हवाले कर दिया। सर क्या ये सुसाइड केस है या फिर? इस बारे में पूरी हम गहनता से जांच कर रहे हैं कि रीज़न क्या है और मामला क्या था। पूरी जांच इसके बारे में हम कर रहे हैं। अवैध रूप से ले जाए जा रहे भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 ट्रैक्टर, 2 कंप्रेसर मशीन, 2 ड्रिल मशीन, 181 डेटोनेटर, 150 गुल्ला, 1 बैटरी, 300 मीटर तार के साथ ब्लास्टिंग करने का सामान भी बरामद हुआ है। पकड़े गए 4 लोग मिर्जापुर के सोनभद्र के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि मिर्जापुर नक्सल प्रभावित जिला है। इसके अलावा यहाँ पर पत्थर खनन का काम भी किया जाता है, जिसमें विस्फोटक का इस्तेमाल होता है और यह यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है और इसका उपयोग किसी भी प्रकार की गतिविधियों में किया जा सकता है। आए दिन पुलिस विस्फोटक को बरामद करती रहती है, लेकिन पूरी तरह से अभी तक इसको रोका नहीं जा सका। हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है विस्फोटक और अवैध असलहों के सापेक्ष। उसी क्रम में मुखबिर लगाए गए थे विस्फोटक को बरामदगी के लिए। कल सूचना मिली कि डगमुखपुर के पास 2 ट्रैक्टर में कुछ विस्फोटक लेकर के लोग जा रहे हैं, जिससे वो पत्थर तोड़ने का काम करेंगे। उसी के सापेक्ष जानकारी पे इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से ड्रिल मशीन और डेटोनेटर, तार और गोला जिसे बोलते हैं वो बरामद हुए हैं भारी मात्रा में। उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनके इस जो विस्फोटक बरामद हुआ है इसके सापेक्ष इनके पास ना तो कोई पेपर है, ना कोई इनके स्पष्टीकरण है, ना कोई जवाब है। केवल ये पत्थर तोड़ने के लिए ये गलत जो है, इनके पास ना इसका कोई लाइसेंस है, ना इनके पास कहीं इनका भंडारण है। उसके सापेक्ष जो इस बरामदगी हुई है 100% इलीगल थी और इसका काम वो अवैध रूप से खनन और पत्थर तोड़ने के में उपयोग करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से जहाँ से जो भंडारण करने वाले लोग हैं, जो पत्थर तोड़ने वाले हैं, जो लाइसेंसी हैं, उन्हीं के सापेक्ष ये बरामदगी उन्हीं के माध्यम से इनको मिलती होगी और अवैध रूप से जो खनन कर रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं, उन्हीं के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। गेहूं की खरीद के समय पंजाब सरकार की तरफ से दावे किए गए थे कि गेहूं साफ सुथरी और नमी से बगैर खरीदी जाएगी। वहीं फरीदकोट की मंडियों में आज से 25 दिन पहले करीब खरीद एजेंसियों ने खरीद और लिफ्टिंग का काम मुकम्मल कर दिया था, लेकिन फरीदकोट के एक जागीरदार आड़तिये और अधिकारियों की आपसी मिलीभगत के कारण करीब 40,000 गेहूं के साथ भरा गट्टा आज तक उसके शेलर वाले गोदाम में पड़ा है, जिसे उसने पुरानी कूड़ा गेहूं मिलाकर बेचने का प्रयास किया। इस दौरान बोरियों को सिलते गुप्त सूचना के आधार पर फेरी करते मौके पर कैमरे में कैद कर लिया गया। आपको बता दें कि यह 40,000 गेहूं के साथ भरा गट्टा FCI और दूसरी खरीद एजेंसी अडानी ग्रुप रीगो के गोदाम में भेजी जानी थी, लेकिन उन्होंने छानबीन करने के बाद इस कूड़ा गेहूं को लेने से साफ इनकार कर दिया। दोनों गोदामों के बाहर कोई भी एजेंसी का साइन बोर्ड नहीं लगाया गया। शायद इसी वजह से साइन बोर्ड नहीं लगाया गया, जिससे आसानी के साथ यहाँ गोदामों के द्वारा सरकार को बड़े स्तर पर चूना लगाया जा सके। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਦਿਕ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਵਰਡ ਮਾਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਮਾਲ ਅਸੀਂ FCA ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਮਾਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਘੱਟਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਲਿਫਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ FCI ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, FCI ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਰੇਗੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਲ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮੋਇਸਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੋਇਸਚਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, FCI ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਖੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ
ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਲ ਕੇ ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ? नहीं ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। अम्बाला में आज योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में भारत माता योग अभ्यास केंद्र सोसाइटी, ब्रह्म कुमारी आश्रम अम्बाला छावनी, राघव योग केंद्र और आर्ट ऑफ हैप्पीएस्ट लिविंग संस्थाओं के सहयोग से लगाया गया। इस शिविर में 1000 से अधिक योगाभ्यासी ने सामूहिक योग क्रियाएं की। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में हुए इस योग प्रशिक्षण शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। सारे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। यूएनओ ने हिंदुस्तान की बहुत ही प्राचीन विधा को अंगीकार किया है। ये हर भारतवासी के लिए एक गर्व की बात होनी चाहिए, क्योंकि हमारी विधा विश्व के कोने कोने में पहुंच रही है। यानी हिंदुस्तान को योग के माध्यम से सारे विश्व के देशों में, उनके शहरों में, उनके गांव में, उनकी गलियों में पहुंचने का अवसर मिल रहा है। और इस बार हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि पिछले वर्ष के योग दिवस को देखते हुए हरियाणा में जिस उत्साह से इस योग दिवस को मनाया गया, उसको देखते हुए इस बार जो राष्ट्रीय आयोजन है वो हमारी राजधानी चंडीगढ़ में केंद्र सरकार ने करने का निर्णय लिया है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तीनों मिलकर सहयोग करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन ये जो दिवस मनाया जाता है इसका भी एक महत्व है। दिवस का मतलब ये नहीं होता कि उस कार्य को केवल उसी दिन करना है, इसका ये मतलब कभी नहीं होता। वैसे तो अब साल का हर दिन लगभग किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। बहुत सारे दिनों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली हुई है, बहुत सारे दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली हुई है। लेकिन किसी भी दिन का मतलब यह नहीं होता कि उस दिन ही हमने ये काम करना है, और योग का तो बिल्कुल भी नहीं होता। दिन का मतलब है कि लोगों को उस दिन इसके बारे में जागृत करना।
कि छानाकुई पर चल रहे जाट समाज के धरने के छठे दिन फतेहाबाद से आए जाट नेता हंसराज ने दिया समर्थन। शुक्रवार को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जाट समाज के लोगों को ज्ञापन देकर धरना समाप्त करने की नसीहत दी थी, जिसे जाट नेताओं ने खारिज कर दिया। जिला उपायुक्त कैथल से मिलने की बात पर नेताओं ने सहमति जताते हुए 4 बजे प्रतिनिधि मंडल से मिलने की बात स्वीकार कर ली है। आज 5 साल से चल रहा था और आज 6ठा दिन है। धरने में पहले से दुगना और तिगुना जोश है। धरने की रूपरेखा तो 11 तारीख को बदली जाएगी और उससे पहले लगातार धरना चलता रहेगा जिस प्रकार से चल रहा है। लेकिन बड़े दुख की बात है, आज देश का अन्नदाता भीख मांगने के लिए सड़क पर बैठे हैं। सरकार से उनकी मांग नहीं है, बल्कि सरकार की गलती की हुई मांग मान रहे हैं। जो सरकार ने मांगे माननी थी वो मांगे सरकार ने देने से जवाब दे दिया और जाट समाज को गुमराह करने की कोशिश की। जाट समाज ने आज जो धरना दिया है वो सरकार की गलती सुधारने का एक मौका है। सरकार इन मांगों को मानने, हमारे शहीदों को पूरा सम्मान दे और जो झूठे मुकदमे किए गए हैं वो वापस ले। यदि सरकार जितना जल्दी ये करेगी, जाट समाज पर एक मरहम पट्टी का काम करेगी, क्योंकि आज का जाट समाज किसी भी प्रकार से आंदोलन के पक्ष में नहीं है। जाट समाज शांति चाहता है और शांति प्रिय रहेगा। जिस प्रकार से जाट सबसे ही बिल्कुल स्पष्ट है, जैसे जस्टिसेबल न्याय प्रिय है, ऐसे एक्टिव कार्यशील से सहनशील। उत्तर प्रदेश पुलिस मित्र पुलिस होने का लगातार दावा करती रहती है और वो अपनी पुलिसिंग सुधारने की बात करती है, लेकिन फतेहपुर में पुलिस ने एक नाबालिग को ये कहकर थाने बुलाया कि तुमसे मर्डर के बारे में पूछताछ करनी है। और जब नाबालिग अरमान वहाँ पहुँचा तो पुलिस ने ये कहकर उसे लॉकअप में बंद कर दिया कि तुम कबूल करो कि तुमने ही रेप के बाद युवती की हत्या कर दी है। और ये कहकर अरमान को पुलिस ने फतेहपुर सदर कोतवाली के लॉकअप में बंद कर दिया। जबकि मानवाधिकारों की बात करें तो पूछताछ के लिए थाने लाए युवक को पुलिस लॉकअप में बंद नहीं कर सकती। आपको बता दें कि सदर कोतवाली के नप्पी हाता इलाके में एक युवती की हत्या हुई थी जो अरमान की खाला यानी मौसी लगती है और अब पुलिस उसकी हत्या का जबरन खुलासा करने के लिए ऐसा दबाव बनाकर एक नाबालिग की जिंदगी तबाह करने में लगी है। ऐसे में जब पुलिस से इस मामले में बात करनी चाहिए तो पुलिस ने साफ इनकार कर दिया। खाला के पूछताछ के लिए लाए थे, उन्होंने साथ रेप किया है और तू करियर बोलो नहीं तुमको फंसा देंगे। यानी खाली पूछताछ के लिए लाए थे और यहाँ पे बंद कर दिया तुम्हें। पुलिस ले गई थी आपके भतीजे को और उसके साथ अब क्या कर रही है? एसओजी प्रभारी जो नसीम जी हैं, इन्होंने इस्लाम भाई को फ़ोन किया, हमारे बड़े भैया हैं इस्लाम, उनको फ़ोन किया कि अरमान को भेज दो। तो अरमान मौके में नहीं था तो अमन को भेजा गया। अमन को उन्होंने वापस कर दिया। वापस करने के बाद अरमान को हम लोगों ने फिर भेजा। तो उन्होंने ये कह के कोतवाली छोटे वाले भाई से कहा कि आप कोतवाली से ले गए हैं उसको और कोई बात इनके बारे में पता चली है और वो पूछ के छोड़ दिया जाएगा। लेकिन हम जाके देखे वहाँ कोतवाली में तो उन्होंने लॉकअप के अंदर डाल रखा है और कैदियों जैसा सलूक किया जा रहा है वहाँ पर। क्या है वो रोजे से भी है? रोजे से भी है और दूसरी चीज़ उससे कोई भी मुकदमा पंजीकृत नहीं है, अभी नाबालिग भी है वो और अनर्गल गलत तरीके से फंसा रहे हैं कुल मिला के ये।